very close to me personally, and also a very renowned neonatologist from Kolkata. Sir is professor in SSKM Hospital, Kolkata, which is a very renowned neonatology center in West Bengal, and they have a big unit. Like that's the biggest unit of West Bengal, and lots of cases there, and they have uh, really changed the way babies are ventilated, in the sense that a lot of non-invasive ventilation and CPAP they do, and he has multiple publications to his credit, mostly on non-invasive ventilation and CPAP. And we are really blessed to have you, sir. And I would request Dr. Bijan Saha to please start your webinar on nursing aspects of CPAP. Sir, please. Thank you, Dr. Subhash. First of all, let me thank the organizer, especially National Neonatology Forum of Maharashtra, and the organizer to give me an opportunity to speak on nursing aspect of CPAP. First of all, thank you, Dr. Subhash, for the nice words. I don't know whether I deserve it or not. Firstly, let me tell you, when I was given this task of talking on nursing aspect of CPAP, I think आप लोग जितने those who are watching our webinar, I think सभी लोग ने CPAP use कर रहा है कि नहीं? I think all of you are using CPAP. I'm sure. So before we start the nursing aspect of CPAP, let us start first with the definition. What is CPAP? CPAP refers to the application of continuous positive airway pressure both during inspiration and expiration in a spontaneously breathing baby. So one thing from the slide, it is clear. आप लोग सब लोग देख रहे हैं, हम लोग का सांस का दो ही फेज होता है, एक इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन में सांस लेता है, एक्सपिरेशन में सांस छोड़ता है. So CPAP means there is an extra pressure. That pressure will be delivered. That pressure will be delivered both during inspiration and expiration. During सांस लेने का टाइम में एक प्रेशर डिलीवरी होगा, सांस छोड़ने का टाइम में एक प्रेशर डिलीवरी होगा. Just to remember one thing, that our lung is just like a balloon. Lungs एक balloon का तरह होता है. So in a newborn baby, especially preterm baby, जो premature बच्चे होता है, उसका lung का prematurity होता नहीं है. So once the lung maturity is not there, what happens? During the time of expiration, सांस छोड़ने का टाइम में there may be some collapse of the alveoli. Collapse means वो कोलाप्स हो जाता है, बैलून जैसे हवा निकल जाने से जैसे होता है वैसे हो जाता है. So अगर बैलून से हवा निकल जाएगा, so there will not be any air inside the balloon, and that is essential for gas exchange. So CPAP का काम यही है. In CPAP therapy, what happens during the time of expiration, some amount of some pressure will be delivered. उस pressure delivery होगा so that balloon is not deflated और balloon collapse नहीं हो जा सकता है. So that is the idea of CPAP. Actually, the whole idea of CPAP is that you have to open the lung. Open the lung means if there is some collapsed alveoli, that has to be open and keep it open. So what are the different types of delivery systems? CPAP हम लोग किस से दे सकता है? I think जो हम लोग का webinar देख रहा है, all of you have seen this machine. This is called bubble CPAP. इसको bubble CPAP बोलते हैं. इसमें कुछ है ही नहीं कुछ. इसमें दो चीज है. एक है ब्लेंडर, एक है ह्यूमिडिफायर, और पीछे से दो लाइन निकल जाता है, एक ऑक्सीजन के लिए, एक एयर के लिए. And this is the water chamber. So and there is a flow meter. So ब्लेंडर का काम क्या है? ब्लेंडर से हम 21 से 100% ऑक्सीजन दे सकता है. फ्लो मीटर से हम फ्लो रेगुलेट करता है. फ्लो अप टू 10 लीटर्स और 15 लीटर्स वी कैन रेगुलेट कर सकता है. और ह्यूमिडिफायर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. ह्यूमिडिफायर का काम जो गैस पेशेंट के अंदर में जाएंगे, उस गैस को हीट एवं ह्यूमिडिफाइड करना है. हीटेड करना है, उसको ह्यूमिडिफाइड करना है. आप लोग देख रहे हैं इसमें कुछ टेम्परेचर दिखा रहा है. ये टेम्परेचर, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस. और जो चेंबर है, दिस इज अ बबल चेंबर. आई थिंक आप लोग जो लोग है हम लोग को वेबिनार देख रहा है, ऑल ओवर यूजिंग दिस मशीन. सो CPAP मशीन में हाई कुछ नहीं. इसमें एक ब्लेंडर रहता है, एक ह्यूमिडिफायर रहता है, एक बबल चेंबर रहता है, एक ट्यूबिंग रहता है ऑक्सीजन का कनेक्ट करने के लिए ऑक्सीजन के साथ, एंड सेकंड ट्यूबिंग फॉर द एयर. इसमें एक चीज बोलना जरूरी है, जिसके पास पाइपलाइन ऑक्सीजन और एयर नहीं है, उन लोग के लिए ओनली एक कंप्रेसर रहेगा यहाँ में. बट मैं जो मशीन दिखा रहा हूँ इसमें कंप्रेसर नहीं है, इसलिए हमें एयर एक कनेक्टर रखा हूँ. दैट मीन्स एयर एंड ऑक्सीजन विल बी मिक्स्ड एंड दैट विल गो टू द ब्लेंडर. और ब्लेंडर से हम ऑक्सीजन को टाइट्रेट करेंगे. टाइट्रेट करने के बाद हम कुछ फ्लो रखेंगे. उस फ्लो से गैस यहाँ में आएगा ह्यूमिडिफायर में. ह्यूमिडिफायर में गैस विल बी हीटेड एंड हीटेड गैस विल गो थ्रू द चेंबर दैट इंस्पिरेटेड लिम्ब एंड दैट विल बी डिलीवर्ड टू द बेबी. एंड एक्सपिरेटेड लिम्ब लगा रहता है इसमें ह्यूमिडिफायर चेंबर में.
सो बेबी जो गैस होगा एक्सपिरेटरी चेंबर से गैस निकलेंगे, और एक्सपिरेटरी चेंबर का जितना हम सेंटीमीटर डुबाएंगे दैट इज द प्रेशर विल बी डिलीवर टू द बेबी. दैट मीन्स कितना प्रेशर पेशेंट को डिलीवरी होगा दैट विल बी डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लेंथ डिप्थ इन द चेंबर. तो जितना सेंटीमीटर डुबा रहेगा उतना सेंटीमीटर गैस डिलीवरी होगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आप लोग को देखना पड़ेगा जो टेम्परेचर हम लोग का 37.5 डिग्री होना चाहिए, 37 डिग्री, एंड गैस शुड बी हीटेड एट ह्यूमिडिफाइड एट 100%. दो ही चीज लिखना है, एक चीज है कितना सेंटीमीटर डुबा हुआ है, कितना टेम्परेचर से गैस जा रहा है, ये 37 डिग्री होना चाहिए. और ब्लेंडर का और एक काम है इसमें, वी कैन रेगुलेट, हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं 21 से 100% ऑफ ऑक्सीजन. सो हमको जितना ऑक्सीजन देना है वो देखना है, और फ्लोमीटर से फ्लो रेगुलेट करना है. फ्लो यूजुअली केप्ट एट 5 लीटर्स पर मिनट. एंड दिस इज द इंटरफेस ऑफ हार्टसन प्रो. मेरे को लगता है हम लोग का पास 2-3 मशीन रहता है, एक है बबल सीपैप, एक है वेंटिलेटर सीपैप. तो बबल सीपैप मशीन आप दिखा लिया. सेकंड थिंग वी कैन सी द वेंटिलेटर सीपैप. सो वेंटिलेटर सीपैप में एक ही चीज है, हियर इन द एक्सपिरेटरी लिम, आप हमें देखिए एक्सपिरेटरी लगा हुआ है, एक्सपिरेटरी लिम इन बबल सीपैप नहीं रहेगा, ये वाटर चैम्बर में चला जाएगा. So the difference between the ventilator CPAP and bubble CPAP is that expiratory limb जो है वो expiratory limb यहाँ में नहीं connect होके it will go into the water chamber. So that is the only difference between the ventilator CPAP and the bubble CPAP. But mostly in our place we are using bubble CPAP. So same thing here has been written. There will be an inspiratory limb and there will be an expiratory limb. This is the humidifier. इसमें blender नहीं दिखा, blender अंदर में है. You can regulate the FiO2 with the blender. So यहाँ हम सीपैप में 3 चीज रहता है, एक है ब्लेंडर, एक है ह्यूमिडिफायर, एक है फ्लोमीटर. So सीपैप में हम लोग एक नर्सिंग एस्पेक्ट है, what is the nursing, what we have to see. The 3 things. One is we have to know how much pressure is delivered to the baby. That means कितना सेंटीमीटर डुबा हुआ है. Second is कितना टेम्परेचर में गैस जा रहा है. Usually it should be at 37 degree Celsius as it is shown here. Third is FiO2. FiO2 कितना दे रहा है? Actually FiO2 from 21% to हम ज्यादा से 60% दे सकता है, कोई कोई जगह में ज्यादा भी दे सकता है. And fourth is the flow meter. Flow कितना flow? Flow usually kept at 5 to 6 liters per minute. So जो हम नर्सिंग एस्पेक्ट है, एक सीपैप मशीन का ऊपर जो ध्यान रखना है, what is the temperature delivered to the of the gas delivered to the baby. Second important thing, what is the flow of the gas, that is 5 liters or 6 liter. What is the amount of pressure that is delivered to the baby, that is 5 centimeter or 6 centimeter, and what is the FiO2, कितना FiO2 जा रहा है, 21% जा रहा है ना, 50% जा रहा है ना, 30% जा रहा है. तो एक चीज हमें बोलना बहुत जरूरी है, सक्सेस एंड फेलियर ऑफ CPAP usually depends on the how we can meticulously we can deliver it to the baby. So that is why it is said written that nasal CPAP is successful when meticulous attention is paid to the both infant and the nasal CPAP delivery system. मैंने जो दिखाया पहले वो nasal CPAP delivery system दिखाया, मैं इन्फेंट का जो सिस्टम वो नहीं दिखाया. सो वी शुड कीप ए विजिलेंस ऑन मॉनिटरिंग ऑफ द इन्फेंट्स कंडीशन. दैट इज व्हाई पेशेंट को ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए. मेंटेनिंग एन ऑप्टिमल एयरवे विद प्रॉपर इंटरफेस. इंटरफेस मैंने दिखाऊंगा जो पेशेंट का साथ लगा रहा था. थर्ड इज मेंटेनिंग ए फंक्शनिंग ऑफ CPAP डिलीवरी सर्किट. सर्किट में जो दिखाया एक इंस्पिरेटरी सर्किट एंड एक्सपिरेटरी सर्किट. फोर्थ इज द कॉम्प्लिकेशंस व्हिच मे अराइज ड्यूरिंग नेजल CPAP. So CPAP में क्या देखना है, एक है मशीन देखना है, एक पेशेंट देखना है, and third is the we have to see the interface. That is why it is written that what we will discuss today: monitoring and ongoing assessment, positioning of the baby, airway care, feeding and parenteral environment. Let us go one by one. हम एक के बाद एक जाते हैं. Ongoing assessment क्या देखना है? Suppose एक पेशेंट CPAP में लगा हुआ है, how well the infant is doing over the time and once the CPAP has been applied. So CPAP आप लोग जो CPAP दिखा है, I think all of you will agree with me. जब CPAP लगाना at the time of initiation of CPAP, baby struggles. जब हम CPAP लगाता है, baby struggle करता है, because that time baby is hypoxic. उसी टाइम में baby hypoxic रहता है. But as soon as the baby gets CPAP, जब baby को CPAP मिल जाता है, तब धीरे धीरे baby शांत हो जाता है. So the one important thing of the nursing aspect is that when you start CPAP, you should be very very meticulous, or we should be very careful when you put everything together. So baby को थोड़ा सा gently कैप लगा के, इंटरफेस लगा के, FiO2 सेट करके, प्रेशर सेट करके, everything should be done so that the baby is comfortable. Initially baby को थोड़ा सा ट्रबल होगा, धीरे धीरे baby will settle.
Observe the infant every 1 hour or 4 hours, then every 3 to 4 hours. Baby should be monitored regularly. I think that you can understand. Is there an improvement or decompensation? What is important? Why it is important? Suppose a baby बड़ा होता है, इसमें छोटा baby में इतना problem नहीं होता है. If the baby is small, then your job is not very difficult because small baby ज़्यादा fight नहीं करता है. If the baby is big, like a meconium strain liker baby है, baby को CPAP मिल रहा है, और a big baby है, TTN भी है, CPAP मिल रहा है, वो baby fight करेगा. So उस baby में पहला initial period is very very crucial and that is the job of the nursing staff. वही nursing care है. पहले उसको ठीक से लगाना है, लगाने का साथ साथ जब उसको सीपा मिल जाएगा, उसका लांग जब खुल जाएगा, उसमें जब प्रेशर डिलीवरी होगा, एल्वेलर जब कोलैप्स नहीं होगा, धीरे धीरे बच्चा इंप्रूव हो जाएगा. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट इनिशियल 5 to 10 minutes when the baby is connected to CPAP, that is very very crucial. Fourthly, requiring further intervention, whether baby requires something more. So इस स्लाइड में आप लोगों को पता चलेगा, पहले मैंने मशीन दिखाया, मशीन दिखाने के बाद अल्टीमेटली इट हैज कम टू द बेबी. This is the CPAP system. One is the inspiratory limb and the second is the expiratory limb. And this is the interface. Interface may be mask or maybe nasal prong. मैंने को लगता है whether you can use mask or prong, it doesn't make any difference. मास्क और लगाइए और prong लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई सेंटर मास्क में ज्यादा बोलता है, ज्यादा कंफर्टेबल है, prong में ज्यादा इंजरी का चांस ज्यादा होता है. एंड बेबी, सो CPAP में अगर जो आपको देखना है, क्या देखना है, मशीन को देखना है, दो सर्किट, इंस्पिरेटरी लिम्ब एक्सपिरेटरी लिम्ब का सर्किट को देखना है, ऑक्सीजन आ रहा है कि नहीं वो देखना है, देन FiO2 कितना जा रहा है देखना है, फ्लो कितना जा रहा है देखना है, गैस कितना टेम्परेचर में जा रहा है वो देखना है, एंड द बेबी को देखना है वेदर द बेबी इज कंफर्टेबल और नॉट, बेबी का रिट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं, बेबी का कलर कैसा है, बेबी इज कंफर्टेबल और नॉट, एंड द इंटरफेस. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज आउट ऑफ 3, मेरे को अगर पूछेगा इसमें ज्यादा सबसे ज्यादा टफ काम कौन है, क्या है, इफ यू आस्क मी व्हाट इज द टफेस्ट थिंग, व्हाट इज दैट इज द फिक्सेशन ऑफ द इंटरफेस. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये इंटरफेस को फिक्स करना, बिकॉज मेनी टाइम्स आप लोग देखेंगे वो निकल जाता है, अगर वो निकल जाएगा तो पूरा काम लोग करेंगे, बिकॉज इट इज ए क्लोज सिस्टम. इफ इट इज गोन आउट देन क्या होगा, वो पूरा हवा निकल जाएगा. इफ द हवा निकल जाएगा बाहर में तब तो अंदर में जाएगा ही नहीं. सो व्हाट हैपेंस, CPAP को अगर डिलीवरी होगा कि नहीं वो बेबी को देखना है, बबल चैम्बर को देखना है, मशीन को देखना है, इंटरफेस को देखना है. मैंने इसको एक्चुअली आई हैव केप्ट दिस स्लाइड, मैंने को लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ह्यूमिडिफिकेशन, आप अगर CPAP लगाइए, वेंटिलेशन दीजिए, हाई फ्लो दीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी मींस गैस का अंदर में कितना मॉइस्चर है, लेकिन गैस का अंदर में कितना मॉइस्चर है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर एंड द पानी कितना है. इसलिए आप लोग को जो मैं दिखाया था बबल चेंबर में, बबल इसलिए देता है ह्यूमिडिफाइड चेंबर में वाटर डालना चाहिए, दैट इज द डिस्टिल्ड वाटर. That distilled water will be heated, and once the gas comes to the distilled water, through the distilled water, so what happens, the gas is heated, and that is very very important. If the gas is not heated and humidified, it is said that air obstruction होगा, discomfort होगा. That is why you have to check the humidification system. एक चीज आप लोगों को बताता हूँ, any gas if it is more than 1 liter per minute, एक अगर गैस 1 लीटर से ज्यादा देना है तो उसको ह्यूमिडिफाइड करना है, हीट करना है, बिकॉज इफ यू डू नॉट हीट एंड ह्यूमिडिफाई, क्या होगा, वो अंदर से सारा सिक्रेशन लेके लेंगे. जब सिक्रेशन ज्यादा लेंगे तो अब क्या होगा, अंदर में सारा टेनिशियस सिक्रेशन हो जाएगा, दैट विल ब्लॉक द एयरवे, तो एयरवे ब्लॉक हो जाएगा. क्योंकि हम लोग जब नॉर्मली सांस लेता है तो बाहर का ह्यूमिडिफिकेशन 50% रहता है, लेकिन वो जो अंदर में जाता है सांस लेते हैं हम लोग, धीरे धीरे वो 100% होता है. अंदर से जो गले से वो हम लोग वो मॉइस्चर ले लेता है, and then it goes inside the alveoli. So जो alveoli में जाता है तो it becomes 100% humidified and temperature of the body is around 37 degree. That is why हम लोग टेम्परेचर रखते हैं 37 डिग्री में. सो ह्यूमिडिफिकेशन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, गैस जितना जाएगा सो कोल्ड गैस जाएगा, एंड कोल्ड गैस आने से क्या एयर ऑब्स्ट्रक्शन होगा. एंड इट इज सेड दैट इफ यू डू नॉट ह्यूमिडिफाई देन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द म्यूकोसा एंड वाटर वेपर, जो मैंने बताया, एंड देयर विल बी कैलोरीज आर यूज्ड एंड एनर्जी एसेंशियल टू ओवरकम द वर्क ऑफ ब्रीथिंग. एक चीज आप लोग को बताता हूँ, आप जितना भी अच्छा CPAP दीजिए और जितना अच्छा मशीन यूज कीजिए, अगर ह्यूमिडिफिकेशन ठीक नहीं होगा तो we will fail. That is why humidification is important. Humidification में दो चीज important है, एक है temperature of the gas and the moisture. बोलते हैं temperature of the gas should be 37 degrees Celsius and the gas should contain all this moisture. I think all of you have seen, आप लोग देखा है temperature यहाँ में जो स्लाइड में दिखा रहा है it is 37 degrees Celsius. and यहाँ में देखिए दो सिंबल है, एक है इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव. एक चीज याद रखिए, whether you use CPAP or
इन्वेसिव वेंटिलेशन ऑलवेज इट शुड बी ऑन द इन्वेसिव मोड. इसमें दिखा रहा है नीचे एक मास्क का पिक्चर है, बट वी शुड नॉट कीप इट इन द मास्क पिक्चर, वी शुड कीप इन द इन्वेसिव मोड, बिकॉज इन्वेसिव मोड में इसलिए देना है, invasive, whether the baby is on CPAP or invasive mode of ventilation, it should be always, gas should be always 37 degree Celsius. अगर आपका कोई गलती से नॉन इन्वेसिव मोड में आ जाएगा, then temperature will come down. So we should keep the temperature at 37 degree Celsius. So as a nursing staff, what is our job? हम लोग का काम क्या है? जब आप पेशेंट के पास जाते हैं, so हमेशा देखिए what is the temperature of the gas. ये यहाँ में दिखा जाएगा. अगर यहाँ में 37 डिग्री दिखा रहा है, माने आपका टेम्परेचर ठीक है. अगर 37 डिग्री का कम है, उसका कारण क्या हो सकता है? एक कारण हो सकता है कभी पानी नहीं होता है. अगर पानी नहीं होगा तो पानी शुड पोर्ट. अगर पानी कोई अगर आपका पास रियूजेबल ह्यूमिडिफायर होगा तो पानी डालना चाहिए, लेकिन ऑटोमेटेड फिल्टर ह्यूमिडिफायर भी होता है, पानी ऑटोमेटिकली भी जाएगा. सो इफ द पानी इज नॉट देयर, द टेम्परेचर विल ड्रॉप डाउन और देयर मे बी समथिंग रॉन्ग इन द ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम. सो मेरा एक कहना है इसमें, व्हाटएवर यू यूज, whether you would CPAP, ventilation, temperature of the gas should be 37 degrees Celsius and it should be heated and humidified. Another important thing, आपको यहाँ में देखना है टेम्परेचर कितना है, और सेकंड क्या देखना है, सेकंड देखना है वो जो सर्किट है, ये सर्किट में कोई पानी होना नहीं चाहिए. Because if this gas is heated here at 37 degree, then it will flow. ये हमें फ्लो होगा. नॉर्मली क्या होता है, आप लोग देखिए, जब हम गर्म पानी से नहाता है तो ग्लास में there is some moisture. From where this moisture comes? Because when you एक बात, हम लोग नहाते हैं तो एयर वहां का अंदर में गर्म हो जाता है, देन इट टेक्स मोर मॉइस्चर. लेकिन वो जो ठंडे चीज का कांटेक्ट में आ जाता है तो मॉइस्चर छोड़ देता है. जस्ट लाइक ए थम्स अप बॉटल अगर फ्रिज से हम निकाल लेता है, खुलने का साथ साथ उसका वॉल में पानी आ जाता है. वो पानी कहाँ से आ जाता है? पानी वो एयर में जो मॉइस्चर है दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड बॉटल में आने का साथ साथ वो गैस छोड़ देता है. सो आप लोग का अगर इंस्पिरेटरी लिम्ब में अगर मॉइस्चर है, दैट मीन्स यहाँ में गैस हीट नहीं हो रहा है, यहाँ में गैस नहीं उठ रहा है, दैट्स द इंस्पिरेटरी गैस में मॉइस्चर जमा हुआ है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इंस्पिरेटरी लिम्ब में देयर शुड नॉट बी एनी मॉइस्चर, कोई मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, लेकिन एक्सपिरेटरी लिम्ब में थोड़ा सा मॉइस्चर हो सकता है. और एक चीज, यहाँ में 37 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ में एक हीटर कॉयल है. दैट हीटर वायर का पर्पस है, इट विल हीट द गैस फर्दर. दैट मीन्स इसमें 37 होने से इसमें और उसको हीट करने के बाद अल्टीमेटली यहाँ में 40 डिग्री होगा. सो अगर आपका पास गैस का टेम्परेचर यहाँ में 37 डिग्री नहीं है और वो हीटर वायर काम नहीं कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ में पानी जमा होगा. और एक चीज, पानी हम जमा होने का और एक कारण हो सकता है, अगर कभी कभी ठंडा हवा अगर सर्किट के ऊपर पड़ेगा तब भी दैट गैस विल लूज दिस टेम्परेचर. दैट मीन्स जो गर्म होने से हवा, उसमें पानी ज्यादा रहेगा. अगर कोई कारण में गैस ठंड हो जाता है तो पानी छोड़ देंगे. So as a nursing staff, what we have to see, we have to see the temperature of the gas. We have to see any condensation, कुछ condensation and raining out हो रहा है कि नहीं. अगर condensation हो रहा है, that means हम लोग का कुछ problem है humidification में. Second important thing is the third important, you have to see the alarm. कभी-कभी आप लोग का इस बटन में अलार्म होगा, जो चेंबर का है, इसमें अलार्म इज वेरी वेरी कॉमन. इसका कारण यही है, पानी नहीं है. कभी-कभी आपका यहाँ में होगा मीन्स प्रॉब्लम इज इन दिस एरिया. सपोज कभी-कभी आपको यहाँ में होगा मींस द डिजिटल लेयर में सेंसर में कुछ प्रॉब्लम है. मेरा कहने का मतलब यही है, इफ देयर इज एन अलार्म, वी शुड ऑलवेज एड्रेस द अलार्म. अलार्म क्या हो सकता है? पानी नहीं हो सकता, उसके लिए अलार्म हो सकता है. कोई सेंसर में कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए अलार्म हो सकता है. बट एज ए नर्सिंग स्टाफ हम लोग को क्या देखना है? टेम्परेचर कितना है देखना है, कौन सा मोड में है, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव मोड में है कि नहीं देखना है. इट शुड बी ऑलवेज इन द इन्वेसिव मोड में ही होना चाहिए. इसमें अलार्म दे रहा है कि देखना चाहिए. और एक चीज है, जो इंस्पिरेटरी लिम्ब है, वो सर्किट में कुछ पानी है कि नहीं. अगर पानी है तो कोई प्रॉब्लम है. देखिए, आप जितना भी अच्छा सीपैप कीजिए, पुश कीजिए, अगर आपका ह्यूमिडिफिकेशन नहीं होगा तो पेशेंट खराब होगा. सो दैट वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल. नेक्स्ट, इंटरफेस आई थिंक आप लोग बहुत सारा इंटरफेस देखा है. इंटरफेस हम लोग के पास फिशर पेगल हो सकता है, हम लोग के पास हडसन हो सकता है. ये है अर्जाइल प्रोंग, इट मे बी प्रोंग, इट मे बी मास्क, इट मे बी बाइनेजल प्रोंग. सो हम लोग के पास दो ही ऑप्शन है, एक है बाइनेजल प्रोंग और मास्क. मेरा यहाँ में जो मैं यूज करता हूँ, मैं जो दिखा हूँ, अगर ड्रैगर का जो इंटरफेस है मास्क का, दैट इज वेरी सॉफ्ट, वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है. अगर सॉफ्ट, उसके लिए इंजरी कम होता है. सो मेरा यहाँ में मैं जो करता हूँ, इफ द बेबी इज लेस देन 28 वीक, लाइक अगर 1 kg के नीचे बच्चा होगा तो मैं ड्रैगर का इंटरफेस यूज करता हूँ. आप दूसरे भी यूज कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरा कहना है दैट इंटरफेस शुड बी फिक्स्ड प्रॉपर्ली.
इसमें फिक्स मीन दैट उसमें कोई हवा निकलना नहीं चाहिए, इट शुड बी स्नैगली फिटेड। इंटरफेस में भी ड्रैगर, इट में भी फिशर एंड पैकेल, इंटरफेस में भी हर्ट्ज, बट आपका पास जो है वही यूज कीजिए, वही बार। और एक इंटरफेस है दैट इज द रैम्स कैनुला, उसमें क्या है, उसमें और एक सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम होता है इन गवर्नमेंट सेक्टर, बिकॉज मेनी टाइम्स व्हाट वी सी दैट वी रीयूज इट, अगर रीयूज करने के साथ साथ ये हार्ड हो जाता है। तो सो इंटरफेस में जो देखना है आपको, फर्स्ट देखना है ये स्नैगली फिटेड है कि नहीं। अगर स्नैगली फिटेड नहीं है, अगर ये निकल गया, दैट मींस हवा बाहर जा रहा है। वंस हवा इज गोइंग आउट, देन पेशेंट विल नॉट गेट एनी बेनिफिट। दैट्स व्हाई इट इज अ कॉमन प्रॉब्लम, नीड्स मॉनिटरिंग, चेक बबल्स। सो आपका पास अगर चेंबर में बबल नहीं है, दैट मीन्स आपका कोई जगह में लीक है। सो अगर बबल नहीं है, उसका 3 प्रॉब्लम हो सकता है। इट मीन्स लीक इन द इंटरफेस और लीक इन द सर्किट। अगर सर्किट में भी लीक हो सकता है और इंटरफेस में भी लीक सकता है। तो हमको कैसे पता चलेगा कहाँ लीक है? सो उसमें एक काम करना है, सपोज देयर इज नो बबल इन द चेंबर, को क्या करना है, ये इंटरफेस निकाल लीजिए, उसको ऑक्लूड कीजिए, बंद कीजिए। बंद करने का साथ साथ अगर देखेगा जो बबल में चेंबर में बबल आ रहा है, दैट मींस लीक इज हियर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लीक विल बी इन द इंटरफेस एरिया। अगर बबल उसमें बबल नहीं आ रहा है, दैट मींस लीक इन द circuit. So either there may be leak in the circuit or leak in the bubble. So always you should look at the bubble. If there is bubble, that means patient is getting CPAP. Third is that in fact बहुत सारा इंजरी होता है. I think all of you have seen. तो इंजरी क्या हो सकता है, पहले क्या होगा, there will be blanching, there will be color change, then it will happen. So in our place what we do, हम लोग के यहाँ में हम मास्क और प्रोंग को अल्टरनेट करता है। सो आप 4 घंटा मास्क दीजिए, 4 घंटा और ये दीजिए। और एक प्रॉब्लम होगा आपका, इसमें प्रॉब्लम और ज्यादा होगा कौन बेबी में, स्मॉल बेबी में। बड़ा बेबी में इंजरी कम होगा। सो वन ऑफ द नर्सिंग एस्पेक्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट देयर शुड नॉट बी। और एक चीज है, द वेट ऑफ द सीपैप सिस्टम, ये इंटरफेस यहाँ के ऊपर रहना नहीं चाहिए, द होल वेट शुड नॉट कम हियर। सो देयर शुड बी अ गैप एटलीस्ट 2 मिलीमीटर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल, फ्रॉम द कोलुमेला विद द इंटरफेस। सो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So every time you see the baby, whether there is any redness or there is erosion, that is very very important. You can give a great CPAP, but if there is injury, then it is a problem. So how to prevent this trauma? एक है, you can alternate mask और prong, और हम लोग जो करता है, if the baby is less than 1000 gram, हम यूज करता है ड्रैगर का मास्क, that little bit soft, that causes less injury. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको बेबी जब अच्छा हो जाएगा तो हाई फ्लो में शिफ्ट कर दीजिए। हाई फ्लो में शिफ्ट करने का साथ साथ बेबी का इंजरी कम हो जाएगा। And fourth is that always look at the baby's nostril, and the weight of the CPAP system should not fall on the columella. Columella को सारा weight पड़ना नहीं चाहिए, अगर weight ज्यादा पड़ेगा तो उसका problem ज्यादा होगा। So this is very critical. I think this is the thing we should see as a nursing staff. हम लोग को क्या करना है, बेबी को CPAP मिल रहा है कि नहीं मिल, पहले देखना है, और क्या मिल रहा है वो देखना है, and it should be given properly. So this is one of the survey that showed that so then positioning, you can keep the baby in any position. आप सुगान पोजीशन पे रख सकता है, प्रोन पोजीशन में रख सकता है। हम लोग क्या करते हैं, सभी सपोज बेबी का सैचुरेशन नहीं आ रहा है, इरिटेशन है, तो यू कैन कीप द बेबी प्रोन। सो यू कैन कीप द बेबी एट एनी पोजीशन। सो बट एक्सेसिव फ्लेक्शन और एक्सेसिव एक्सटेंशन नहीं होगा। इसमें देखिए, अगर इसका वेट बेबी के ऊपर पड़ना नहीं चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट, नेक शुड नॉट बी फ्लेक्स्ड और एक्सटेंडेड। अगर फ्लेक्स और एक्सटेंशन होगा तो प्रॉब्लम होगा। So you can keep the baby supine, lying or prone position, and nesting. Nesting करने का मतलब nesting should be given for each and every baby. So आपको position में क्या देखना चाहिए, whether there is any flexion or extension or rotation of the neck. Second is you can keep the baby supine or prone. Airway clear. कभी-कभी बेबी को secretion हो सकता है. So secretion के लिए you can use some saline nasal drop. And secretion should be seen. क्योंकि आपका पास बबल्स आ रहा है, चेंबर में बबल है, लेकिन यहाँ में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो भी बबल होगा। सो सपोज देयर इज बबल इन द चेंबर बट बेबी इज नॉट इंप्रूविंग, बेबी का डिटोरिएशन हो रहा है, दैट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम इन द नॉस्ट्रिल्स, मे बी देयर इज सिक्रेशन, उसमें सिक्रेशन होगा। अगर सिक्रेशन होगा तो सिक्रेशन को हटाना चाहिए। सो इफ यू कैन रिमूव सिक्रेशन फ्रॉम द नॉस्ट्रिल, देन बेबी विल इंप्रूव। सो अगर बेबी फेल हो रहा है, ऑलवेज डू नॉट जंप टू इनवेसिव वेंटिलेशन। सपोज देयर इज बबल इन द चेंबर बट बेबी का प्रॉब्लम हो रहा है, means that means there is obstruction in the interface area. So you can see the interface and you can see whether there is any some secretion in the nostril. And I think ये नाक का ऊपर दिया हुआ है किस लिए, because if you those who have used, आप लोग जो लोग मास्क यूज किया तो सब दिखा हुआ है। So मास्क के ऊपर यहाँ में एक नाक के ऊपर बहुत बड़ा इंजरी हो जाता है। To prevent injury, what we use Tegaderm and Duoderm. एंड यहाँ में भी एक टेगाडर्म यूज करना चाहिए। सो आपका एरिया 2 है, अगर मास्क यूज होगा तो इसमें इंजरी होगा, और प्रोंग इंजरी होगा तो इसमें इंजरी होगा। सो दैट टू प्रिवेंट इंजरी
from the mask and prong, this is very important. So prong में यहाँ में इंजरी होगा, prong में यहाँ में इंजरी होगा, नास होगा तो यहाँ में इंजरी होगा. So that we have to see. So वो आपको करना है. अगर आप कोई, हम लोग क्या करते हैं, पहले एक ट्रिगरडार्म, उसके बाद एक डुओडार्म, वो देने का साथ साथ ये जगह सिक्योर्ड हो जाता है. So if the place is secured, then injury will be less. The same thing, what I have said. You see, इसमें थोड़ा गैप है. अगर गैप नहीं होगा तो ये पूरा सारा वेट यहाँ में पड़ेगा. और ये है कि डुओडार्म, क्योंकि इसके अंदर में आप प्रोंग यूज कर सकता है. हम लोग क्या करते हैं, हम डुओडार्म को, यू सी, इसको हम निकाल के, दिस इज कॉल्ड कॉम्फिल. कॉम्फिल को हम 5 मशीन से इसे कर लिया. इसके अंदर में अगर आप कैनुला नेजल प्रोंग देंगे तो क्या होगा, सो इट विल बी स्नगली फिटेड एंड देयर विल नॉट बी लीक. इट हैज गॉट 2 पर्पस, और इंजरी भी नहीं होगा. सो अगर प्रोंग का अंदर से एक घुसा देंगे, उसके बाद प्रोंग में लगा, नाक में लगाएंगे, सो देयर विल बी लेस इंजरी. दिस इज नथिंग, ओनली कॉम्फिल. यू कैन कट द कॉम्फिल एट योर ओन एंड डू इट, क्योंकि हम लोग का यहाँ में जो बाहर में मिलता है वो मिलता नहीं है. सो कॉम्फिल को काट के एंड 5 मशीन से 5 करके इसका अंदर से अगर प्रोंग देंगे, सो दैट विल बी बेटर. दैट इज इनोवेशन, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. हम लोग यहाँ में हम लेके से करता है. एंड आप लोग सबको पता है, जब अगर बेबी को हवा जाएंगे तो कुछ हवा पेट में जाएंगे. इसीलिए फीडिंग देने का बाद 30 मिनट उसको अपलोड करना नहीं, उसके बाद खोल देना चाहिए, अदरवाइज एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा. सो बेबी कैन बी फीड. सो ऐसे देख रहा है बेबी को फीडिंग दे रहा है, बट आफ्टर गिविंग फीड 30 मिनट इसको अपलोड कर रखना है, उसके बाद और खोल देना चाहिए, बिकॉज सीपैप में बहुत सारा हवा पेट में जाएंगे. सो दिस इज द व्हाट इज शोन. Another important thing is that पेरेंट सीपैप में पेशेंट को केएमसी दे सकता है. आप देख रहे हैं इस बच्चे को मदर ने केएमसी कर रहा है, बट ओनली प्रॉब्लम इज दैट मेनी टाइम्स क्या क्या होता है, कभी कभी केएमसी करने का टाइम में डिसैचुरेशन हो गया. एक बार डिसैचुरेशन होगा तो मदर को कंप्लीट नेक्स्ट टाइम मदर आएगा नहीं. सो इसमें डिसैचुरेशन क्यों होगा, होने का एक कारण है, देयर में भी एक्सेसिव फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. अगर नेक ज्यादा फ्लेक्स होगा और एक्सटेंशन होगा तो भी बेबी का एपनिया होने का चांस रहता है. सो अगर पेशेंट को केएमसी देना है तो आपको ठीक से देखना है वेदर द बेबी नेक इज फ्लेक्स्ड और एक्सटेंडेड. अगर ज्यादा एक्सटेंशन होगा तो आपको ठीक करना है, क्योंकि एक बार आपका बेबी का डिसैचुरेशन हो गया, मदर का कॉन्फिडेंस लॉस हो गया, नेक्स्ट टाइम मदर विल नॉट कम, नेक्स्ट टाइम मदर आएगा नहीं. सो 2 चीज करना है, केएमसी अगर देना है तो देखना है और साथ में सैचुरेशन को देखना है. सो मदर को बोलना है, if the saturation comes down then they can inform. And always you have to see the baby's position, because हम पहले बताया था, if there is excessive flexion or excessive extension तो सीपैप डिलीवरी नहीं होगा. अगर सीपैप डिलीवरी नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा. Then the general क्या, सिंपली याद रखिए, बेबी शुड बी कंफर्टेबल. बेबी को कंफर्टेबल होना चाहिए, टोन एक्टिविटी ग्रांटिंग होना नहीं चाहिए, रिट्रैक्शन कम होना चाहिए. अगर रिट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है दैट मींस सीपैप नहीं मिल रहा है. बेबी का कलर भी ओके, मोटेल होना नहीं चाहिए, पेल होना नहीं चाहिए. टेम्परेचर, वाइटल्स, एवरीथिंग शुड बी नॉर्मल. आपको 3 चीज देखना है. एक है बेबी का जनरल अपीयरेंस, वेदर बेबी इज कंफर्टेबल और रिट्रैक्शन इज देयर और नॉट. थर्ड है कलर, वेदर बेबी इज पिंक और पेल. फोर्थ है यू हैव टू सी द टेम्परेचर, हार्ट रेट एंड SpO2. अगर SpO2 कम हो रहा है दैट मींस कैश एक्सचेंज नहीं हो रहा है. तो आपको और 5th देखना है, बेबी को देखना है. बेबी को क्या देखना है, वेदर द बेबी का रिट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं. मिनिमम रिट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन ज्यादा अगर रिट्रैक्शन हो रहा है तो हम लोग का सीपैप में कोई प्रॉब्लम है. सिस्टमेटिक इवोल्यूशन आई थिंक आप लोग जो कर रहा है, CRT, BP, यूरिन आउटपुट. CRT एंड यूरिन आउटपुट करना चाहिए. हम जो यहाँ यूरिन आउट करता है, डायपर को पहले वजन करना चाहिए, उसका बाद बेबी यूरिन पास करने के बाद वजन करिए. जितना डिफरेंस होगा उतना ही वेट होगा, क्योंकि अगर सीपैप ठीक से डिलीवरी नहीं होगा तो बेबी को प्रॉब्लम है. एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखना चाहिए. इसलिए बोला था अगर बेबी को सीपैप देना है तो पहले 30 मिनट ओजी फीडिंग, ओजी क्लोज करना है, उसके बाद ओजी को खोल देकर रखना चाहिए. न्यूरोलॉजिकल स्टेटस में टोन, एक्टिविटी, रेस्पॉन्सिवनेस. आई थिंक एज ए नर्सिंग स्टाफ, मैं अगर कोई बेबी को फीडिंग दूंगा, कुछ जाऊंगा, दूसरा बेबी को काम कर रहा हूँ, तो मैं दूसरा बेबी जो उसको सीपैप मिल रहा है मैं क्या देखूंगा, उसका ज्यादा टास्क करने का कोई जरूरत नहीं है. जस्ट लुक एट द बेबी. बेबी का रिट्रैक्शन हो रहा है नहीं कि, अगर रिट्रैक्शन नहीं हो रहा है, कंफर्टेबल है, मैंने सीपैप मिल रहा है. सेकंड क्या दूंगा मैं, उसका बबल चेंबर दूंगा. अगर चेंबर में बबल आ रहा है दैट मींस सीपैप मिल रहा है. थर्ड क्या दूंगा, आई विल सी द SpO2. अगर सैचुरेशन मोर देन 90% है, हम लोग जानते हैं प्रीटर्म बेबी में टारगेट सैचुरेशन इज 92-94%. तो इतना ज्यादा बेबी का टास्क करने का जरूरत नहीं है. एक बेबी को दूर से भी देख के आपको याद होना चाहिए जो व्हाट इज हैपनिंग टू द बेबी. सपोज बेबी इज कंफर्टेबल, नो रिट्रैक्शन नहीं हो रहा है, कंफर्टेबल है, कलर इज पिंक, बबल चेंबर में बबल है, इंस्पिरेटरी लिम्ब में कोई कंडेंसेशन नहीं है, टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमिडिफायर 37 डिग्री, सैचुरेशन इज मोर देन 90%, दैट मींस आपका जॉब हो गया, काम, आपका जॉब इज डन.
Another important thing is that हम बबल चेंबर के बारे में बोला था, अगर जितना सेंटर में आप डुबाएंगे उतना ही होगा. कभी कभी पुराना होने के बाद तो ज्यादा डूब जाता है. अगर ज्यादा डूब जाएगा तो उसके लिए ज्यादा प्रेशर डिलीवरी होगा. दैट्स व्हाई ऑलवेज वी शुड सी हाउ मच सेंटीमीटर इज डिप्ड इनटू द चेंबर. अगर ज्यादा सेंटीमीटर में डिप्ड होगा तो उसका लिए प्रॉब्लम होगा. आई थिंक दिस इज द स्कोर, यू नो, कैसे सिल्वरमैन स्कोर करना चाहिए. And another thing that like any other baby, you should see the respiratory rate, xiphoid, upper chest, lower chest, grunt ring, SS score, SpO2, CRT, BP and urine output. Second important thing is CPAP में आपको every 2 hourly क्या का मॉनिटर करना है, हार्ट रेट करना है, CRT का CFT करना है, सिलोमेन स्कोर, ब्रेथ साउंड, यूरिन आउटपुट, एब्डोमिनल गार्ड. एब्डोमिनल गार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज एब्डोमिनल गार्ड ज्यादा बढ़ रहा है, either it may be abdominal distension or it may be because of CPAP. मैंने देखा हूँ CPAP में कभी-कभी एब्डोमिनल परफोरेशन भी हो जाता है. That is rare, but it can happen. Another important thing, मैंने जो बताया था पेशेंट के सामने क्या देखना है, डिस्टेंस बिटवीन द कोलोमेला इंटरफेस, बिकॉज वो देख के क्या करना है, whether the babies इंटरफेस कोई प्रेशर है, देन नेजल स्किन ब्लेंचिंग हो रहा है कि नहीं, कोलोमेला एंड सेप्टल एस्कुरेशन हो रहा है कि नहीं, ओरल एंड नेजल सिक्रेशन है कि नहीं, ओजी ठीक से है कि नहीं, ओजी बाहर, कभी कभी ओजी बाहर भी आ सकता है, बाबल प्रेजेंट इन द चेंबर और नॉट, टेम्परेचर कितना है, एंड द फ्लो, बिकॉज सीपैप में हम लोग क्या देखना है, फ्लो देखना है 452 लीटर 8 लीटर, देन प्रेशर देखना है, दैट इज बबल चेंबर में, देन ओजी ठीक से है कि नहीं. मैं यहाँ में और एक चीज याद करता हूँ, इंस्पिरेटेड एक्सपिरेटेड लिम्ब में कंडेंसेशन है कि नहीं, वो भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर कंडेंसेशन ज्यादा है दैट मींस ह्यूमिडिफिकेशन ठीक से नहीं हो रहा है. दिस इज अबाउट इन द नटशेल अबाउट दिस. पोस्ट कभी-कभी एक्सट्यूबेशन के पास भी बेबी एक्सट्यूबेशन के बाद भी हम सीपैप में रखते हैं, तो उसमें क्या करता है, ओरल एंड नेजल सक्शन, सैलाइन नेबुलाइजेशन इफ सिक्रेशन, वाज फॉर एपनिया, टैकिपनिया, रिट्रैक्शन एंड ब्रेडिकार्डिया एंड फ्रीक्वेंट चेंज इन पोजीशन. क्योंकि सीपैप प्राइमरी मोड में हम यूज कर सकता है और एक्सट्यूबेशन के बाद भी यूज कर सकता है. एक्सट्यूबेशन बाद भी एक ही चीज देखना है, लेकिन मॉनिटरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन डेवलपमेंटल सपोर्टिव केयर. व्हाट इज डेवलपमेंटल सपोर्टिव केयर? आप सीपैप दीजिए, वेंटिलेशन कीजिए, यही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट है नॉइज. नॉइज शुड बी मिनिमम. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं अगर रॉन्ग नहीं हूँ, मोस्ट ऑफ द यूनिट में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा साउंड आता है, और दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द बेबी. द साउंड, द मैक्सिमम साउंड डेसिबल इज लेस देन 50 डेसिबल. देन लाइट. अगर बेबी का अंदर में लाइट ज्यादा पड़ेगा, आप मेरा कोई पिक्चर में देखा, आंख के ऊपर एक शील्ड रखा हुआ है, आंख का ऊपर शील्ड इसलिए दिया हुआ है बिकॉज इट शुड, द लाइट डिस्टर्ब्स द बेबी. देन मिनिमल फिजिकल स्टिमुलेशन. इफ द बेबी, इफ देयर इज नो रूटीन सक्शन का करने का कोई जरूरत नहीं है. इफ देयर इज सिक्रेशन ओनली देन यू गो फॉर सक्शन. एंड अनइंटरप्टेड स्लीप. अनइंटरप्टेड स्लीप कब होगा? अगर बेबी आप बेबी को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करोगे तो भी अनइंटरप्टेड स्लीप होगा, नहीं तो नहीं होगा. देन पोजीशनिंग एंड लाइट म्यूजिक मे बी इंपॉर्टेंट. सो फाइनली क्या कर सकता है आप, मैंने जो बताया, सो व्हाट इज दैट? वन इज पोजीशन. पोजीशन मींस वेदर देयर इज फ्लेक्शन एक्सटेंशन. नेक रोल जैसे, नेक रोल नहीं है एक्चुअली, एक्शन बिलो द शोल्डर देना पड़ेगा एक्चुअली. देन सिस्टम, फ्लो रेट्स, FiO2, बबल एंड वाटर लेवल, ह्यूमिडिफायर टेम्परेचर, वाटर लेवल, गैस ह्यूमिडिफिकेशन मैंने बताया. देन सक्शन रूटीन सक्शन को जरूरत नहीं है, ओनली इफ इट इज रिक्वायर्ड देन वी गो फॉर सक्शन. इंटरफेस में एक चीज याद रखिए, it should not be too loose or it should be too tight. अगर ज्यादा टाइट होगा तो it will cause injury, अगर ज्यादा लूज होगा तो it will cause leak. So interface should neither be very loose or neither be very tight. टाइट ज्यादा होगा तो नोज में इंजरी होगा, अगर लूज होगा तो लीक होगा. And you should always try to see and to avoid trauma. Then humidifier chamber का टेम्परेचर 37 डिग्री होना चाहिए. इंस्पिरेटरी लिम्ब में कोई कंडेंसेशन होना नहीं चाहिए, एक्सपिरेटरी लिम्ब में थोड़ा सा कंडेंसेशन हो सकता है. And you should always look at the alarm. जितने अलार्म है वो देखना चाहिए. Then position of the baby. Baby को position should be slightly extended, and you can keep the baby on supine or prone position. And finally is that machine. Machine में क्या देखना है? Flow rate देखना है, FiO2 देखना है, bubbling देखना है, water chamber देखना है. So what I have learned, अगर CPAP को establish करना है तो कोई चीज पहले establish करने के लिए पहले आदमी को they do not accept. पहले क्या होता है, उसको मांगता नहीं है. बट वंस यू स्टार्ट यूजिंग देन यू गेट द बेनिफिट. तो आप लोग क्या लगता है, वी आर गेटिंग सम बेनिफिट, हम लोग कुछ फायदा मिल रहा है. अगर फायदा मिलेगा तो देन इट बिकम्स अ रिलीजियन. मेरा हॉस्पिटल में, मेरा डिपार्टमेंट में ये रिलीजियन है. अगर कोई बोलेगा सीपैप काम नहीं करता, हाई फ्लो काम नहीं करता, नोबडी विल बिलीव. लेकिन कोई नया चीज आपके पास आएगा, पहले आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो यू विल नॉट बिलीव इट. सो वंस यू गेट बेनिफिट देन यू स्टार्ट बिलीविंग इट. देन सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज अ टीम वर्क. एवरीबॉडी शुड बी involved. Meticulous monitoring. I think CPAP का सक्सेस और फेलियर डिपेंड करेगा पूरा से पूरा नर्सिंग केयर के ऊपर. If the nursing care is not there, any system CPAP will fail.
एंड वंस यू स्टार्ट यूजिंग, हम लोग यूज करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाएगा। मैंने जो तो ऐसी इनोवेशन दिखाया, आप उससे ज्यादा भी कर सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू बेटर। मेंटेनिंग एन ऑप्टिमल एयर है, बिकॉज कोई एयर में कोई सिक्रेशन होगा, कुछ होगा तो देयर विल बी प्रॉब्लम। सो नेक शुड बी स्लाइटली एक्सटेंडेड, you can keep the baby in supine or prone position. And third important thing is maintaining a patent CPAP delivery. Patent CPAP delivery means अगर आपको CPAP डिलीवरी हो रहा है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? पता चलेगा फर्स्ट इज बबल। चेंबर में अगर बबल है तो आई थिंक यू आर श्योर दैट CPAP मिल रहा है। लेकिन चेंबर में बबल है, बेबी का रिट्रैक्शन हो रहा है, दैट मींस देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन मे बी इन द सिक्रेशन इन द नोज, तो आपको सिक्रेशन को साफ करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपका जो बबल, जब प्रेशर जितना 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर उसको देखना है, क्योंकि बबल CPAP में अगर वो ज्यादा नीचे घुस जाएगा तो प्रेशर डिलीवरी विल बी मोर, दैट यू विल नॉट नो, देयर विल बी निमोथोरैक्स, वो देखना है। थर्ड क्या देखना है, ह्यूमिडिफायर का टेम्परेचर देखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ह्यूमिडिफायर का टेम्परेचर आप लोग देखिए 37 डिग्री होना चाहिए, इंस्पिरेटरी लिम्ब में कोई सिक्रेशन होना नहीं चाहिए, अलार्म को एड्रेस करना चाहिए, एंड द वाटर चेंबर में वाटर होना चाहिए। फोर्थ इज द प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन कैन बी प्रिवेंटेड if you are very much careful. Finally कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, मेन कॉम्प्लिकेशन जो है नेजल ट्रॉमा, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकता है? एक है आप मास्क एंड प्रोंग यू कैन फ्रीक्वेंटली चेंज। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट you can use mask or you can use that extra, that tegaderm or duoderm, accordingly you can save the nose, because आप CPAP लेके पेशेंट अच्छा हो गया, लेकिन there is complete destruction of the nose, and if there is complete destruction of the nose, आप लोग सुन लीजिए, वो nose repairing actually 18 years में होगा, वो कभी नहीं होगा। That is very very important, and one of the most important thing is the nasal trauma. And finally is the human approach. You should be human like any other babies. We should treat in a human way. I think that is all about nursing care of CPAP. If you have got any query, I'll be happy to answer. Thank you very much. Thank you for your patient hearing. Hello. Yeah, thank you so much, sir. Dr. Bijan, sir, thank you so very much. It was really very lucid, and I hope everybody has benefited from your lecture, sir. I would request the audience, आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट्स है, क्लैरिफिकेशन है, प्लीज पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए, हम लोग सर को पूछेंगे, या आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। यस सर, एक क्वेश्चन है प्लीज सर। सर फ्रॉम औरंगाबाद। सर बोलिए। हाँ बोलिए। थैंक यू। जो सेंट्रल कनेक्शन जो रहता है O2 सप्लाई, जब सेंट्रल O2 सप्लाई रहता है, जब वो कुछ वजह से स्टॉप हो जाता है, तो जो CPAP पे हम O2 सिलेंडर में कैसा लेना है सर? वो उसका ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर कम होता है और CPAP को प्रेशर ज्यादा रहता है, तो वो दिक्कत आती है सर, वो कैसा मैनेज करना है? आपका क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर्टिनेंट है। आप बोल रहे हैं सपोज पाइपलाइन ऑक्सीजन इज देयर एंड ऑक्सीजन इज नॉट देयर, तो अब आपको सिलेंडर से कनेक्ट करना चाहिए। तो दो चीज है, सिलेंडर में कनेक्ट करना डिफिकल्ट होगा क्योंकि आपका पास वो एडाप्टर होना चाहिए। अगर एडाप्टर नहीं होगा तो आप कनेक्ट करने नहीं सकेंगे। मेरा सजेशन यही होगा, यही चीज होता है सुबह 4 बजे में, क्योंकि जब चेंजिंग टाइम होता है, तो आपका जो मैनिफोल्ड रूम है, में दो एक चीज है, मैनिफोल्ड रूम में जैसे हमारे यहाँ में जो लिंडे का आदमी मैनिफोल्ड रूम में 24 आवर्स ऑन ड्यूटी रहता है। दैट मींस 24 आवर्स अगर वो लोग ड्यूटी में रहेगा, कोई भी टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर खाली होना नहीं चाहिए, वो तो उन लोगों को करना ही है, क्योंकि आपका पास वो पाइपलाइन ऑक्सीजन से खुल के ऑक्सीजन सिलेंडर में कनेक्ट करना इट विल बी डिफिकल्ट। आप नहीं सकोगे अगर एडाप्टर नहीं होगा। और आप ठीक है बोल रहे हैं, अगर लीक होगा तो देयर प्रेशर विल नॉट बी बिल्ड अप। सो मेरा सजेशन ये होगा, जिसका पास पाइपलाइन सिस्टम है तो मैनिफोल्ड सिस्टम में सिलेंडर रहेगा, सो मैनिफोल्ड सिस्टम में आदमी रहता है। इट इज हम लोग को यूनिट बहुत बड़ा बिग यूनिट है, इसलिए मैनिफोल्ड यूनिट में 2-3 आदमी हमें ऑन रोटेशन बेसिस ड्यूटी में रहता है। सो दैट शुड बी अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पास मैनिफोल्ड रूम का फोन नंबर होना चाहिए। सपोज कोई टाइम में ऑक्सीजन नहीं है और देयर इज नो पाइपलाइन ऑक्सीजन, देन यू शुड इमीडिएटली कॉल देम, उन लोगों को कॉल करना चाहिए सो दैट दे विल अटैच द न्यू सिलेंडर। क्योंकि एज ए नर्सिंग स्टाफ आपको नर्सों का आपको नया सिलेंडर में लगाना इट इज डिफिकल्ट है, और जिसका पास पाइपलाइन है उसका पास सिलेंडर रहता नहीं है यूनिट में। लेकिन मेरा पास कोई यूनिट में सिलेंडर नहीं है, एक सिलेंडर है वो ट्रांसपोर्ट बेबी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो सिलेंडर तो हम CPAP मशीन में लगा नहीं सकता है। दैट इज अ रियल प्रॉब्लम। थैंक यू। आई थिंक दैट इज द वे हम उसको ओवरकम कर सकता है, उसका रास्ता वही है। ओके सर, थैंक यू। Okay, sir, some questions have come in the chat box. एक पूछ रहे हैं कि Dr. Gaurav has asked, what about PEEP? I didn't understand the question, Dr. Gaurav.
आप चाहो तो आप अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन. CPAP is PEEP only. I didn't understand the question. डॉक्टर गौरव, आप पूछना चाहते हैं डायरेक्टली क्या? Hello. हाँ बोलिए डॉक्टर गौरव. Yes. Hello. Good afternoon, sir. हाँ गुड आफ्टरनून I'm डॉक्टर asking गौरव. about PEEP. How PEEP, can you maintain? PEEP. Means like you are saying about that. Yeah, PEEP. Means how can we adjust on the CPAP that? See, what is first of all, let me tell you, Gaurav, PEEP and CPAP, although it is same, CPAP is delivered both during inspiration and expiratory phase, but PEEP is in the ventilator. That is Yes. at the end of expiration. So we call PWP when it is delivered by ventilator, invasive mode, but CPAP when it is by the CPAP Yeah. machine, because CPAP is delivered both during inspiration and expiration, but positive end expiratory pressure is delivered at the end of expiration. That is in the invasive mode. So that is the basic difference between CPAP and PEEP. And now you are asking how it is maintained. Hello? Hello? Gaurav? Yes, sir, you can continue. You tell me then what is the next question? Yeah, next question, sir, is not from Dr. Gaurav. Ankita Thomas is asking monitoring sheet of CPAP. उसको अगर दोबारा आप दिखा सकते हैं. And उनका question ये है कि has it to be maintained in each shift? Yes, the monitoring sheet has to be there throughout actually, every shift. There's no doubt about that. Yeah. मैं आप लोगों को बताता हूँ. अंकिता, थैंक यू वेरी मच. एक्चुअली CPAP का सक्सेस एंड फेलियर डिपेंड करेंगे टोटली ऑन नर्सिंग एंड द रेसिडेंट केयर. If the nurses and residents are very much enthusiastic, very much involved on CPAP, वही सक्सेसफुल होगा. मेरा बात सीधा है. CPAP में देखना क्या है? वाटर चेंबर में वाटर है कि नहीं, बबल चेंबर में बबल आ रहा है कि नहीं, सेकंड इज इंस्पिरेटरी लिम्ब में कंडेंसेशन आ रहा है कि नहीं, यही सारा यहाँ में दिया है. फ्लो जब जितना रखा है उतना है कि नहीं. देन टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमिडिफाइड गैस कितना है. मैं एक चीज बताता हूँ, मैं बहुत जगह में गया हूँ, पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर वेंटिलेशन CPAP, लेकिन ह्यूमिडिफिकेशन पर कोई जोर ही नहीं देता है. मैं अगर सोचता हूँ इसमें और एक लाइन ऐड कर सकता है. एक है टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमिडिफायर गैस एंड ऑल्सो एनी कंडेंसेशन इन द सर्किट. इफ इट इज गिवन देन इट विल बी कंप्लीट, बिकॉज दीज आर द थिंग्स वी नीड. कितना टेम्परेचर जा रहा है, कितना ये करना तो है ही. मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ यू गो टू द एनी यूनिट, आप लोग को देखेंगे ह्यूमिडिफायर अलार्म दे रहा है, नोबडी इज बॉदर्ड. ह्यूमिडिफायर अलार्म में मैंने जो अलार्म में मेनली जो अलार्म देता है वो है वाटर इज नॉट इन द चेंबर. सेकंड इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज लो. मैं एक चीज और नहीं बताया, इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज लेस देन 35.5, अगर 35.5 नीचे होगा गैस का टेम्परेचर और 41 डिग्री का ऊपर होगा तो ही अलार्म देगा. तो आपको हर अलार्म को एड्रेस करना चाहिए. एंड इट इज द कंबाइंड एफर्ट ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेस, बिकॉज एज ए रेसिडेंट डॉक्टर, एज ए कंसल्टेंट, इफ आई डू नॉट मेक माय स्टाफ वो व्हाट इज ह्यूमिडिफिकेशन, उन लोगों के पास उतना आएगा नहीं. मैंने देखा हूँ ह्यूमिडिफिकेशन लेके बच्चे को खराब होता है. ह्यूमिडिफिकेशन खराब होगा तो बेबी विल डिटोरिएट. हाउ मच गुड CPAP मशीन यूज. सो दीज आर थिंग्स वी हैव टू डू. उसमें कोई चारा नहीं है, करना है. Okay, sir. Next question is Hello sir, this is Dr. Dinesh Thakur. नॉन इन्वेसिव हाँ, वेंटिलेशन क्या है, कोई पूछना चाहते हैं? यस. देखिए, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन कुछ नहीं है. आप उसको ET ट्यूब हटा दीजिए. इन्वेसिव पेशेंट में ET ट्यूब, मैं बोलता हूँ वेंटिलेशन विदाउट माइनस ET ट्यूब इज नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन. इन CPAP में आप मास्क यूज कर सकता है, प्रोंग यूज कर सकता है. नेजल हाई फ्लो में नेजल हाई फ्लो कैनुला यूज कर सकता है. In non-invasive positive pressure ventilation, either you can use mask or prong or cannula. Or nasal high frequency ventilation may be either use nasal, prong and mask. Non-invasive ventilation means when you do ventilation without a endotracheal tube, that is non-invasive ventilation. And it is from nasal high flow, nasal CPAP, nasal INV. मेरा पास और एक ऑप्शन है nasal high frequency ventilation. Now people are using, although it is in a primitive stage. And non-invasive, these are the all non-invasive model ventilation available with us. Okay, thank you sir. एक क्वेश्चन और है. This is Dr. Dinesh Thakur. Hello. Okay, Dr. Gaurav, please ask. Hello, this is Dr. Dinesh Thakur, sir. From Nasik. Sir, we met at Delhi. I can remember you. Actually, I can remember. Yes, sir, Yes, Dr. Dinesh. How are you? Sir, my question is, when we change the water in humidifier, sisters change water in humidifier, so system is disconnected. So yes, can we prevent it? Because we are not getting distilled water bottles.
See, Dr. Dinesh, in Delhi also I told you, actually Yes, it sir. should be a closed chamber. So what is Yes, sir. done in most That's of the we are not places, getting here. it should be a closed chamber. You can buy a 4 liter, 5 liter, 2 liter bottle. That should be connected with a Yes, sir. with a that our IV drip set. वो Yes, कनेक्ट sir. करने का आप लोग के लिए प्रॉब्लम नहीं है. अगर वो नहीं होगा तो आप राइट है. तो एवरी टाइम क्या होता है, you will open the humidifier chamber and pour water, and this is a source of infection. So it should be a closed chamber. I fully agree with you. लेकिन most of the places they are using, दो डिस्टिल वाटर हम लोग यूज करता है, एक बार आप Yes, खोलोगे sir. तो We are there not is a- getting 1 to 2 liter bottles here. but We are I getting think it direct is 5 liter available. can. 5 liter. What I do, you give me your mail ID. I'll send the details of their bottle. I think we'll Yes, get. sir. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. I'll send. We are using it regularly. Yes, sir. Nice And question. how to when to use high flow nasal cannula versus CPAP? Oh, see, high flow nasal cannula is the breeze between the oxygen and the CPAP. Yes. हाई फ्लो नेजल कैनुला एक्चुअली यूज करना चाहिए जो बच्चा थोड़ा सा अच्छा है. तो Okay. एक चीज हाई फ्लो नेजल कैनुला का जो यूजेस है, आइदर इज अ प्राइमरी मोड और इज अ सेकेंडरी मोड. प्राइमरी मोड में जो दिखाएगा इट इज नॉट गुड, इट इज लार्जर इंफीरियर टू सीपैप. सो आप प्राइमरी मोड में यूज कर नहीं सकता है. सेकंड में हम लोग जो करता है, बस सब जगह में जो करता है, जो सीपैप में अच्छा हो रहा है, लेकिन 4 सेंटीमीटर सीपैप प्रेशर है, FiO2 30%, उस पेशेंट को आप हाई फ्लो में ले जाइए. और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इफ द बेबीज वेट इज लेस देन 1000 ग्राम, इट इज बेटर नॉट टू यूज नेजल हाई फ्लो, बिकॉज जितना नेजल हाई फ्लो का स्टडी हुआ है, सारा मोर देन 1000 ग्राम ऑफ बेबी. सो आपका Okay, बेबी sir. जो सीपैप में अच्छा हो रहा है, मैं यूजुअली इसको सेकेंडरी मोड में यूज करता हूँ. प्राइमरी मोड में मैं यूज नहीं करता हूँ. प्राइमरी मोड में फेलर होने का चांस बहुत ज्यादा होता है. एंड प्राइमरी मोड इवन यू यूज इट मोर देन बेबीज हु आर मोर देन 1000 ग्राम. 1000 ग्राम का ऊपर से करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा. Yes, sir. बट Thanks a lot, ऑलवेज sir. यू आर राइट, ऑलवेज यू ट्राई टू शिफ्ट फ्रॉम नेजल सीपैप टू नेजल हाई फ्लो एट Yes, एनी sir. अपॉर्चुनिटी. Yes. Thank you, sir. Thanks a lot. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन जो चैट बॉक्स में आया है, एक तो somebody has asked difference between invasive and non-invasive. I think that has already been answered, that invasive is with endotracheal tube and non-invasive means no endotracheal tube. Simple. Then किसी ने, Dr. Ankita Thomas has asked, can you show a picture of baby with nasal mask on CPAP? If you have it, sir, you can show it like with screen sharing. Yeah. Picture of a baby with nasal mask on CPAP, because many units, I guess, don't use nasal mask, so people want to see how it looks like. Meanwhile, एक और क्वेश्चन है सर, बताइए. इसकी FiO2 कितना रखना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा है तुषार ने. डॉक्टर तुषार, एक्चुअली जब प्रीवियसली हम लोग जो टीचिंग देते थे, FiO2 should be 50%, is not like that. We should start with 21 to 30% oxygen. So FiO2 will depend, FiO2 will be decided by the SpO2. Normally एक बेबी RDS होगा तो you start with 5 centimeter water pressure and with 30% FiO2. Suppose there is no retraction नहीं है, but still the saturation on the lower side, then you increase the FiO2. But if the retraction is there, then you have to increase the pressure. So start with 30%, and if it required, you go to up to 60%. Some center they go up to 70%, but it is the unit policy. In my unit, we do not go beyond 60%, because our 60% FiO2 and 6 centimeter water pressure, if the baby is not improving, then I'll switch over to non-invasive ventilation. Okay. So there, sir is showing the picture of CPAP So with mask. actually, Yeah. I think it is there. Where it is? It was there. 9 Okay. Meanwhile, sir, some other questions. If air pressure is low, then it will affect on CPAP machine or baby. ये लिखा है पूर्णिमा ने. ना ठीक लिखा है वो, माने if the air pressure is low, that means the क्या होगा, तो if the pressure is low, then that compressor will give alarm. Compressor will alarm, and that much of pressure may not be delivered. So this is the common problem with the compressor. Most of the compressor giving sound because of the pressure, low pressure. And if there is low pressure, then compressor will be heated. And second important thing, if you use pipeline oxygen, then also we can use a central monitoring system. In our place, there is a monitoring system. In the monitoring system, it should be always more than 40 millibar. The pressure of the air as well as oxygen should be more than 40 millibar. If it is less than 40 millibar, then there will be more oxygen pressure, more oxygen will be delivered than the
air to deliver that much of FiO2. Suppose air pressure is low, so and the compressor will give alarm. So many times our resident, what they do, they increase the FiO2. And once they increase the FiO2, then definitely it will take care, and that pressure will disappear. That is wrong. So if the air pressure is low and oxygen pressure low, that should be taken care of. The pressures in the air, yes, air and oxygen should be more than 40 millibar. You please 40 continue. millibar. 40 millibar. So if the air pressure is low, you have to see your compressor, or if the air pressure is low, you have to see your central oxygen supply or air supply. It will Okay. definitely Any affect. other? Yes. Thank you, sir. Any other question? I don't find any other question in the chat box. Anybody still wants to ask? Hello. Hello, Good hello, evening, yes, sir. yes. Good evening. Yeah, I'm Shaila here from Kokilaben Ambani Hospital. Thank you for a very informative session. It's like refreshing for me, and my entire team has attended. I'm from Dr. Preeta's unit. I'm a senior manager over there for nursing service, and we do whatever you said exactly. We do that, sir. Thank you, madam. And instead Thank you, of madam. cannulite, we use instead of deodorant, we use a cannulite. That is the one difference we do. Otherwise, You are getting very cannulate, but informative I'm not session, sir. getting. I'm getting compil. I have made it an improvisation little bit. Yes, it's fine. Yeah. Thank you very much, sir. Thank you, madam. Thank you, madam. Anyone else? Any comment, clarification, doubts? Any comments? काही प्रश्न आहेत का? स्टाफला काही प्रश्न Yes, असतील तर yes. विचारू शकता आपण, किंवा Yes, चॅट बॉक्स मध्ये yes, सुद्धा yes. आपण टाइप करू शकता. Tell. या कोई मराठी में भी पूछ सकते हैं, हम में से कोई उसको ट्रांसलेट कर देंगे डॉक्टर विजन के लिए. हाँ, कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. Anyone else wants to ask anything? कुछ प्रश्न पूछना है, पूछिए प्लीज. I think there are no questions, sir. So I No think questions? Okay. Thank you. So, Dr. Bijan sir, thank you so very much. We are Thank you, really Dr. thankful to you. It was such a nice webinar, so practical, and as you correctly said, sir, हमारा सारा success depends on the nursing care and the involvement of nursing officers. In the resident. And Otherwise, it is yes, it is so very important that they understand it and they do it the correct way. And thank you so very much from the Thank you, Dr. organizers. Thank you for giving me an opportunity to actually talk in front of all this learned audience. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Dr. So Shobhash. all, And thank all you, can everybody. log out now. Yes, thank you, sir. You can, Thank you, sir. you can give me email if you have got any doubt. You can give me a mail. I will try to answer your Okay. queries. Okay. Thank you. okay, sir. Thank you Thank so you. much. Yeah.